ध्वज की जय, सनातन धर्म की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੌਲੱਖਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਵਨ ਪੂਜਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੀਪਮਾਲਾ ਅਤੇ ਧਵਜ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੌਲੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੰਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਸੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਿਤੀ, ਕਿਰਨ ਹੰਸ ਵਿਅੰਗਨਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਟ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਸਚਿਵ, ਸਵਿਤਾ ਗੋਇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਪਨਾ ਸਿੰਘ ਬੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੁਆ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਨੂ ਵਿਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੇਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾਸ, ਬਹਿਨ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭਟੀਆਂ ਰਾਇਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਰੁਣ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ बहुत ही मधुर बाणी दे विच उच्चारा गया। हम महंत जी का राष्ट्रीय हिंदू संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपना ये समय निकाला और हमें सनातन की ओर जाने की प्रेरणा दी। मैं केयर जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ। इनकी भावनाएं कि सनातन का कोई भी आप प्रोग्राम करना चाहते हो, कोई भी अध्यात्म का कार्य करना चाहते हो, तो काली देवी मंदिर में स्थान जो है हर समय सनातन अध्यात्म के कामों के लिए हर समय हमें मिल सकता है, हमारे सनातनियों को मिल सकता है, वहाँ से हमारे हिंदू धर्म का प्रचार किया जा सकता है। अभी अभी एक मैं मिनट मेरे को हिंदू राष्ट्र की बात की तो हिंदू राष्ट्र क्या है ये प्रश्न उठ के आता है। मैं छोटे से शब्दों में कहूँगा कि जब इंसान पैदा हुआ था पहली बार तो उसकी एक ही लक्ष्य था कि मैं ठीक रहूं, शांति से रहूं, मेरे को लोग सपोर्ट करें ताकि मैं जिंदा रहूं, मैं लोगों की सहायता करूं। और एक धर्म उस समय बन गया था जिसे कहते हैं मानव धर्म, दूसरे की सहायता करना, दूसरे से सहायता लेना, शांति से रहना, प्रकृति का ध्यान रखना और कोई अहिंसा ना करना, ये मानव धर्म बना था। ये मानव धर्म मानने वाले आगे आकर आर्यन कहलाए। आर्यन के कुछ देर के बाद उन्हों को हिंदू कहा जाने लगा और हिंदुत्व जब कहा जाने लगा तो उन्होंने इन सिद्धांतों को शब्दों में बांध दिया, जैसे वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, या एक ही के हम बालक, एक ही भगवान के हम सभी पुत्र हैं।
या सर्वदा भला सबदा भला होना चाहिए या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सिद्धांतों को एक शब्दों में बांध लिया। पर फिर हमारे भारत में एक और लोग आ गए जो कहते हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसी को मानना चाहिए, जो इसको नहीं मानते उनको समाप्त कर देना चाहिए। इसको सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। सनातन वो है जो मानवता का धर्म कहता है। हम सिख धर्म देखें, जैन देखें, बौद्ध धर्म देखें और अपना हिंदू धर्म देखें, ये सारे सनातन धर्म की बातें हैं। हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहाँ इन भावनाओं से ओत-प्रोत सभी लोग रहें, और यहाँ तक कि हम तो चाहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ही सनातनी हो, जहाँ सभी एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे का भला सोचें और अच्छा करें। राष्ट्रीय हिंदू संगठन भी इन्हीं भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। जय श्री राम। अब मैं हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री गुरुसेवक सिंह जी, जिन्होंने अंत तक मेहनत की आज के दिन को एक यादगार बनाने के लिए, मैं उनके बीच नहीं रुकना चाहूँगा और उनसे विनती करूँगा कि वो संगठन के लक्ष्यों के बारे में, संगठन के बारे में 10 मिनट में कुछ न कुछ बताएं। मैं तहे दिलों धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय हिंदू संगठन वो संगठन है जो सबको साथ लेके चलने के लिए एकजुट होने की भावना रखता है। संगठन निर्माण संकल्प मन में आया तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित भी आवश्यकता था। उपरोक्त सभी कारणों के निराकरण की रूपरेखा भी अंतमन में आकार लेने लगी, जिसे मूर्ति रूप देने का संकल्प प्रकट हुआ। हिंदू संगठन समाज में बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। मैं भी एक हिंदू राष्ट्रीय संगठन का सदस्य हूँ। हमने कोविड में हमारे को जो टैक्स मिला, हमने वो सेवा निभाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने वोटिंग करवाई। ये हमारे संगठन की उपलब्धियां हैं। और आज हमारे संगठन का जन्म उत्सव 36 की 36 स्टेटों में हम मना रहे हैं। और दिनांक 30/9/2013 को महाबलिदानी श्री चंद्रशेखर आजाद जी को साक्षी मानते हुए उनकी प्रतिमा के प्रमुख कर्तव्य संकल्पों के साथ संगठन के आकार प्रकार प्रदान किया गया। तत्कालीन एवं प्रमुख संकल्प कुछ इस प्रकार थे: सनातन धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, हिंदू भाइयों को जागरूक एवं संगठित करना, अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, गौ वंश का संरक्षण एवं संवर्धन करना। ये हमारे लक्ष्य, ये हमारी सबकी सोच होनी चाहिए कि अखंड भारत की बात, राम राज्य की बात हम सभी को सुनाएं। अखंड भारत का जो हमारा नक्शा जो संसद में लग चुका है, उसके प्रति हमारे को अपने घर घर अपने बच्चों को अखंड भारत की बात सुनानी चाहिए, राम राज्य की बात सुनानी चाहिए। तभी जाके हमारे बच्चों को पता लगेगा कि 7000 साल पहले हमारे जो पुरखिया थे, हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग, जिनके राज्य में कोई किसी प्रकार की कोई भी दुख नहीं, क्योंकि वहाँ का एक ही लग गया था, रघुपति राम रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच न जाई। क्योंकि इस दे नाल सानू सब नूं एक दूजे नूं इकमुठ होना पैना है। हिंदू धर्म पर हो रहे अनातरिक जे वहाँ आघातों को समाप्त करके संरक्षण को रोकना, समस्त सामाजिक विसंगतियों को समूल नष्ट करके समाज में
समस्या लाने का कार्य करना, हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों पर प्रतिघात करना, जो हिंदू के विरोधी एवं क्षयकारी हो उनका सामना और निर्मूल करना, ये हमारे सभी के लक्ष्य होने चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों संस्थाओं का सहयोग व समर्थन ना समर्थन करना जो हिंदू एवं सनातन धर्म के समर्थक हो। ऐसे सभी व्यक्तियों संस्थाओं का सहयोग हमका सभी का फर्ज बनता करना। हम सब सभी इकट्ठे हो पाएंगे जब हिंदुत्व की बात करेंगे। समाज के सभी वंचित एवं निर्बल वर्ग के बच्चों को रोजगार पर शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल पद्धति से करना हमारे को आगे जो भी हमारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनसे विनती करता हूँ कि हमारे को गुरुकुल खोलने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को इस युग की बात भी थी, उस युग की बात भी हमारे को दोनों सिखानी पड़ेगी। अगर अमेरिका कनाडा जे हमारे ग्रंथों से साइंस निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये अगर हमारे बच्चों को हम अपने धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन कराएंगे तभी जाके संभव होगा। प्रत्येक हिंदू चाहे वह भारत का निवासी हो, जहाँ भारतीय मूल का NRI बिना किसी भेदभाव के अर्थात लिंग जाति भाषा क्षेत्र अथवा पूर्ण का विचार किए बिना वलिंग जाति व समुचित सहायता करना। इन्हीं संकल्पों के साथ सभी हिंदू भाइयों को संगठित जागरूक एवं क्रियाशील बनाने हेतु राष्ट्रीय हिंदू संगठन नाम के इस संगठन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जो आज प्रतिदिन एवं प्रतिक्षण हिंदुओं को एक मंच प्रदान कर सनातन धर्म एवं सनातन संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावना के उत्थान का कार्य अबाधित रूप से कर रहा है और भविष्य में भी करने के लिए समर्पित रहेगा। हम सब शांति और समृद्धि रहने की सबकी कामना करते हैं। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। राष्ट्रीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोगों को बताना, हिंदुत्व की बात करना, यही हमारा सभी का लक्ष्य है। तो हमारे बहन जी ब्रह्म कुमारी वाले, इनकी संस्था तो बहुत ही उत्तम है, जहाँ पे शिव का मार्ग दिखाया जाता है और ओम शांति की घर घर में इनकी गूंज जाती है। इनका धन्यवाद। मैं भी इनके ही आश्रम का एक शिष्य हूँ। मैंने भी इन्हीं से कुरुक्षेत्र में विद्या ली है, तो 2 साल इन्होंने मेरे को शिक्षा दी वहाँ पे। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे हमारा मैसेज एक ही है, संदेश एक ही है कि सनातन के प्रति जो ये है राष्ट्रीय हिंदू संगठन कार्य कर रहा है, संविधान को अग्रिम रखते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए जिस प्रकार हमारे सदस्यगण चल रहे हैं, इसी प्रकार हमें संविधान का ध्यान रखते हुए, मान सम्मान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी संस्कृति को, सनातन को अग्रिम करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। एकजुट होकर के सबको अपना एक बना करके जाति पाति विशेष को समाप्त करते हुए सब मात्र एक ईश्वरीय शक्ति समझते हुए, ईश्वर की संतान, ईश्वर के प्रभु के प्रेमी समझते हुए सबको, और सबको ईश्वर के बालक समझते हुए हमें अपना एक होना चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस संगठन का कार्य और हम सब का मात्र एक ही भाव है कि हम सब एक रहें, ईश्वर परमात्मा की एक संतान बन कर के रहें। हमारे में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, सब उस ईश्वर की संतान हैं। तो ये जो कार्य किया जा रहा है संगठन की ओर से, वृद्ध आश्रम इत्यादि, वृद्धों की सेवा, निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा, ये निरंतर चलती रहे और हम सबको अपने संगठन से जुड़ कर के प्रतिभाव के साथ, प्रत्येक भाव के साथ एक साथ होकर के, अग्रिम होकर के अपने संगठनों को आगे बढ़ाना चाहिए। सेवा में सहयोग दें, योगदान दें और अपने आप को बड़ा ना समझ करके जो कोई सेवा भाव में समर्पण करता है,
सत्य में वही विशेष और बड़ा कहलाता है। और वीआईपी बनकर के यदि हम आएंगे, यदि वीआईपी बनकर के अपने आप को समझेंगे तो फिर सेवा नहीं हो सकती। तो अपने आप को तुच्छ सा प्राणी हम मान करके यहाँ आए, जो सेवा का हमें अवसर मिला, जो भगवान का गुणगान करने का अवसर मिला, तो हम राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कोटि कोटि बार से आभारी हैं, जिन्होंने हमें समय दिया, सेवा का अवसर प्रदान किया, अन्यथा तो हम इसके काबिल नहीं थे। मैं आप सबका कोटि कोटि बार आभारी हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। जी आए थे, उनके साथ पूरी टीम आई थी, गुरुसेवक जी आए थे और बाकी इनके सभी साथी आए थे। तो इनका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य एक ही है कि सभी सनातनियों को, सभी हिंदू संगठनों को एक करना। तो लक्ष्य एक ही है, इसलिए हमारा भी यहाँ पे आना हुआ क्योंकि इनका मकसद और हमारा मकसद एक है कि सभी सनातनियों को एकजुट किया जाए, सनातन धर्म की जो पिछली बड़ी ताकत है उसको एक किया जाए। और यही लक्ष्य हमारे सभी हिंदू संगठनों का होना चाहिए। जब हमारी मंजिल एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों होने चाहिए। तो सभी को एक मत होकर पूरे जोर से, पूरे होशो हवास में अपने लक्ष्य की तरफ निकलना चाहिए। लक्ष्य हमारा हिंदू राष्ट्र, देश हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने। हमारे सनातन मंदिर जो सरकारों के पास गिरवी पड़े हैं, सरकारों के कब्जे हैं, उन्हें सरकारों के तरफ से मुक्त कराया जा सके। ये तभी हो सकेगा जब हम सभी हिंदू ताकतें एक हो जाएंगी। तो मकसद सबका एक ही है। तो आज मैं पटियाला की सभी टीम को, राष्ट्रीय हिंदू संगठन की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान इनको ताकत दे, सद्बुद्धि बख्शे, ताकि ये सनातन के लिए जैसे कार्य कर रहे हैं उससे भी अच्छे कार्य आने वाले समय में करें। और मैंने अभी विष्णु जी से बात की है कि हमारे श्री काली माता मंदिर में बहुत बड़ी व्यवस्था है, जैसे ऐसे कार्यक्रम करने हों हमारे पास 3-4 हाल है और रसोई की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। अगर आगे से कोई ऐसा कोई कार्यक्रम करना हो पटियाला में तो हम सेवा के लिए हाजिर हैं। तो काली माता मंदिर में एक मुख्य स्थान है हमारे समाज का, हमारे हिंदू समाज का। हमारे शिव शक्ति सेवादल लंगर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे तीनों समय लंगर भी चलाया जाता है। तो आपको खाने की भी सपोर्ट